Hello everyone, welcome back to the channel. This video is especially designed for last minute preparation where you will get important one-liners, themes, figures of speech and exam oriented points all explained in easy and clear language. So we are doing a quick revision of all the poems in this video from CHSC class 12 English. Hope this helps. The first poem, The Ballad of Father Gilligan, which is written by W.B. Yeats. So, W.B. Yeats was born in the year 1865 and died in 1939. He was an Irish poet, means he belonged to Ireland, and he won Nobel Prize in the year 1923. This poem is a ballad with narrative structure and regular rhyme. प्रथमे ballad कौन तमने जानो, a ballad is a poem that narrates a story with musical rhythmic form. So a poem ballad of Father Gilligan रे गोटे स्टोरी अच्छी तो आपको कहा जाए ballad. जो पोएम रे स्टोरी था ताको कहा जाए ballad. Next, the central theme is God's mercy towards human weakness. ए पोएम रो central theme कौन ना भगवानंकर दया कहा प्रति towards human weakness. आम समस्तंकर किछि ना किछि weakness रहिछि बा बलहीनता रहिछि आ ता उपरे भगवानंकर दया जेतेबेले आम प्रति थाए ताले जे कोनोसी सिचुएशन को आमे ओवरकम करि पारिबा. So this is the central theme. Father Gilligan is an old overworked village priest. से सब बेले अधिका काम निजको देउथिले. So overworking village priest जने से थिले. Half his flock were in their beds. यारो मीनिंग कोन? Half his flock माने half of the village people were in their beds refers to being sick. Bed ऊपर से माने थांती माने it doesn't mean they all are sleeping. It means they are sick. Under green sods रो मीनिंग कोन? It refers to the dead. जेति माने death को indicate करूची under green sods. The priest is exhausted from constant service. फादर गिलिगन काहे की एग्जॉस्ट हेथिले काहे की टायर्ड हेथिले ना बिकॉज ऑफ हिज कांस्टेंट सर्विस. मोथ आवर ऑफ ईव रो मीनिंग कोन? इट मीन्स इवनिंग टाइम. ही फॉल्स asleep when called to a dying man. से को समय रे सोई पड़िथिले बा आराम नेबा पई रिलैक्स करबा पई बाध्य हेथिले. When Father Gilligan was being called to visit a man who was about to die. बा जेतेबेले से डाइंग मैन को अटेंड करबा पे से जाइथिले से समय रे एते अधिक टायर्ड हो जाइथिले कि से सोई पड़िथिले. माय बॉडी स्पेक नॉट आई. ए सेंटेंस रो मीनिंग कोन? सी फादर गिलिगन वांटेड टू डू हिज ड्यूटी, देयर इज नो डाउट इन इट, बट हिज टायर्ड बॉडी फेल्ड हिम. सो द एक्शन स्लीपिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ द बॉडी, नॉट बिकॉज ऑफ हिम और बिकॉज ऑफ हिज सोल. सो एटी कौन अच्छी? इट शोज इनर कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट माने कौन? द्वंद्व. हिज बॉडी स्पोक नॉट ही. द लाइन माय बॉडी स्पेक इज personification. Personification कौन? I believe you know this. It is a figure of speech where a non-living thing is given human qualities. So एटी कहा गला my body speak. Body never speaks. But एटी हमें कहूँ कि body जोटा कि गोटे फिजिकल नॉन लिविंग जिनस दैट स्पीक्स. किए स्पीक करती? ह्यूमन बीइंग स्पीक करती. सो बॉडी स्पीक्स ए जो लाइनटा अच्छी एटी यूज होइछि पर्सोनिफिकेशन. देन फादर गिलिगन फील्स गिल्टी फॉर नेग्लेक्टिंग ड्यूटी. नेचर इमेजरी इंक्लूड्स स्टार्स, लीव्स, विंड एंड मॉथ्स. ए जो पोएम रे नेचर इमेजरी दर्शाइबा पे कौन कौन रिप्रेजेंटर्स अछंती? स्टार्स अछंती, लीव्स अछंती, देन विंड एंड moths. Stars began to peep. एटी को प्रकार फिगर ऑफ स्पीच यूज करा जायछि. अगेन पर्सोनिफिकेशन. पीप माने कोन? उंकी मारी के अनैबा. सो स्टार्स began to peep. Stars never peep. को माने पीप करंती? ह्यूमन बीइंग्स. सो अगेन स्टार्स जोटा कि नॉन लिविंग गोटे जिंस ताको हमें ह्यूमन क्वालिटी देले तो हमें स्टार को पर्सोनिफाई कले. पर्सोनिफिकेशन को यूज करछंती ए सेंटेंस रे. नेक्स्ट, God sends an angel in the priest's form. तो भगवान ही पठेइचंती priest form रे गोटे angel को, गोटे messenger को. The dying man passes away peacefully. So the man who was about to die से peacefully दुनिया छाड़ी की चली गले. As merry as a bird. एटी कौन फिगर ऑफ स्पीच यूज हेछि?
as merry as a bird एटी यूज होइछि simile पिला माने simile कोन त माने जानि थिबो simile is a comparison between two unlikely things or two very different objects or ideas by using a comparative word like as or like etc तो एठी आमे as टा comparative word use करके simile टा देखि पारुछे as merry as a bird बा गोटे bird परी happy merry माने to be happy so as merry as a bird as peacefully as a bird the priest sways to and fro in grief what do you mean by to and fro ene tene epatoru sepatoku to and fro the climax is his realization of divine intervention तो आमे climax रे by poem रो ending रे कौन देखुछे ना जो फादर गिलिगन अछंती से रियलाइज करूछंती अबाउट द डिवाइन इंटरवेंशन भगवान मध्य इंटरवीन करंती बा भगवान मध्य दखलंदाज करंती जतेबेले से जानंती कि मैटर रे जेन्युइननेस अछि God knows that Father Gilligan was very genuine about his duty. He never neglected his duty. तो तांको पाई हेल्प करिवा पाई God निजे मेसेंजर को पठै छंती. So ए कथाटा हम फादर गिलिगन लास्ट रे बुझी पार छंती. So डिवाइन इंटरवेंशन को से रियलाइज कर छंती. So poem रो टोन कोन the tone is throughout the poem हमें जदि देखिबा the tone is devotional and humble starting रो ending जाय हमें गोटे humble tone को पाइबा जे कोन जहाँ भी words यूज हेछि एठी humbleness को शो करूची आ devotion को शो करूची गोटे भक्ति भाव अछि words रो यूज रे the setting is a rural Irish village जेहेतु W.B. Yeats is the writer of this poem and he belongs to Ireland Irish poet से राइट तो सेति पे सेटिंग टा मध्य गोटे रूरल आयरिश विलेज टा रहिछि द पोएम हाइलाइट्स प्रीस्टली डेडिकेशन सो पोएम को थीम को अगेन ग्लोरीफाई करूछि हाइलाइट करूछि प्रीस्टली डेडिकेशन बा गोटे प्रीस्ट रो डिटर्मिनेशन तार डेडिकेशन विषय रे आलोकपात करूछि इट अफर्म्स फेथ इन डिवाइन ग्रेस देखो यार मीनिंग कोन कहि परिबा कि दिस पोएम स्ट्रेंथन्स आवर बिलीफ इन गॉड्स काइंडनेस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स भगवान मध्य आम प्रति गोटे काइंडनेस रखिछंती मर्सी रखिछंती बा तांकर ब्लेसिंग सब बेले आम उपरे रहुची सदा सर्वदा मनुष्य मानक उपरे थाए बोली कि हमर जो बिलीफ टा अछि सेटा स्ट्रेंथन होछि रिपीटिशन स्ट्रेंथन्स द बैलेड स्टाइल जो बारंबार रिपीट होछि किछटा वर्ड्स ए पोएम रे सेटा कोन पे रिपीट होछि ना एटा बैलेड स्टाइल रो गोटे कैरेक्टर गोटे ट्रेट बैलेड स्टाइल रे प्राय तो वर्ड्स रिपीट हुए सो दीज रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स स्ट्रेंथन्स द बैलेड स्टाइल द एंजल परफॉर्म्स द लास्ट राइट्स किए परफॉर्म करछि लास्ट राइट द एंजल जे कि भगवान को द्वारा पठा जाइथिले गॉड शोज कंपैशन टुवर्ड ह्यूमन फ्रेलिटी कंपैशन माने कोन कंपैशन इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फ्रेलिटी कोन फ्रेलिटी मीन्स वीकनेस सो दिस लाइन मीन्स दैट गॉड अंडरस्टैंड्स ह्यूमन वीकनेस and treats it with kindness and mercy जदि हमें सिंपली कहबा को गले humans are not perfect and often become tired or make mistakes हम पा एटा बहुत स्वाभाविक हमें केते बेले भी किछि भी भूल करि दे पारिबा because we are just humans God does not punish sincere people for such weaknesses हम भितरे weakness देखि कि भगवान सब बेले punish करिबे नाही because the God understands that we are just human beings and भूल करिबा बा फ्रेलिटी जोटा हमर गोटे कैरेक्टर तो सब से सब बेले फॉरगिव करंती हम मानको आ से हेल्प करिबा पे सदा सर्वदा हम साथी रे ही थांती सो गॉड शोज कंपैशन टुवर्ड ह्यूमन फ्रेलिटी द पोएम कंटेन्स रिलीजियस सिंबॉलिज्म कोन इट मीन्स यूजिंग सिंबल्स कैरेक्टर्स एक्शंस और एनी ऑब्जेक्ट in a literary work to represent religious beliefs, ideas or spiritual truths. So this poem contains many religious symbolism. The priest's sleep represents human limitation. जो फादर गिलिगन रेस्ट रिलैक्स करूचंती बा ऑल ऑफ अ सडन से सोई पडुचंती ताले एटा कोन रिप्रेजेंट करूची ह्यूमन लिमिटेशन कोन Human limitation here refers to the natural weakness and physical boundaries of human beings. आम भितर गोटे वीकनेस अच्छी आम नेचुरली से प्रकार गढ़ा जाइए भगवान द्वारा आमर गोटे फिजिकली सेट बाउंड्री अच्छी ताको क्रॉस करबा हम पई बेले बेले कष्ट हो जाई थाए सो सेति पई ही फादर गिलिगन
ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ନିଦକୁ ଅଟକେଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧ୍ୟ ନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସୋ ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ ବଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଦି ଏଞ୍ଜେଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ divine mercy divine money related to god mercy is compassion so angel kaha ko represent karuchoti na bhagwanankar devatankar mercy kaha upare human weakness upare the message is that sincere service is blessed by god so finally jodi message ame discuss kari pa e poem ro message kono na sincere service is always blessed by god jodi tome tomo kamare sincere acho genuine acho tahale definitely god tomo sathire rahibe a sabu bele tomku bless karibe now the second poem a psalm of life written by H.W. Longfellow Henry Wadsworth Longfellow Henry Wadsworth Longfellow was born in 1807 and died in 1882 was an American poet W.B. Yeats belong करथिले आयरलैंड को और H.W. Longfellow belong करछन्ती अमेरिका The poem is inspirational and didactic in tone inspirational you know जहाँ भितर किसी इंस्पायर करिबार बा मोटिवेट करिबार यू नो ट्रेट अच्छी ताको आमे सेही पोएम को आमे इंस्पिरेशनल पोएम कहबा डायडैक्टिक कोन शिक्षणीय किछि थिबो ओके लर्नेबल सो थ्रू आउट द पोएम आमे गोटे इंस्पिरेशनल आउ डायडैक्टिक एनर्जी बा टोन को फील करि परिबा इट रिजेक्ट्स पेसिमिज्म अबाउट लाइफ सो ए पोएम रे को जिनिस को कंप्लीटली H.W. Longfellow रिजेक्ट करछंती ना पेसिमिज्म को सब बेले से कहते कि एक्टिव रुह डोंट बी पैसिव पैसिव माने किछि काम दाम न करिकी जीवन को वेस्ट करबा दैट इज पैसिव लाइफ और पेसिमिज्म सो द राइटर स्ट्रांगली रिजेक्ट्स पेसिमिज्म अबाउट लाइफ इन दिस पोएम Life is but an empty dream expresses a negative belief. So ए जो लाइन टा अछि एटा कोन लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम किछिटा लोक थांती से माने एटा बिलीव करंती कि जीवन खाली गोटे स्वप्न भलिया जोटा कि हमें सोई सोई कि मध्य देखि पारिबा जोटा कि गोटे नेगेटिव बिलीफ को एक्सप्रेस करूची समस्ते मनुष्य माने एटा भाबिबा कथा नुह लाइफ इज नेवर एन एम्प्टी ड्रीम लाइफ इज वेरी रियल लाइफ इज वेरी अर्नेस्ट So the poet strongly rejects that belief. ए जो belief टा अच्छी negative belief, life is but an empty dream. ए belief को poet strongly reject करू छंती. So instead of that, poet कौन कहती? Life is real, life is earnest. The repetition in that line is repetition as a figure of speech. So ए जो line रे दुई थरो repeat करा जायछि. Life is real, life is earnest. को फिगर ऑफ स्पीच यूज करा जायछि रिपीटेशन रिपीटेशन इटसेल्फ इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी सी द रिपीटेशन ऑफ वन वर्ड और वन फ्रेज मोर देन ट्वाइस इन अ लाइन और इन अ स्टैंजा आई बिलीव दिस इज क्लियर टू यू नाउ द पोएम अगेन एम्फसाइजेस द ग्रेव इज नॉट द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ ग्रेव माने इट्स अ प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बरीड So the grave is not the goal of human life. मरिबा पाई ही आमे बंचु ना हो मरिबा पूर्व हमको बहुत किछि करियो कि जीवा को पढ़िबो I believe you remember the first poem of class 11 stopping by woods on a snowy evening जोटार लास्ट लाइन थिला miles to go before I sleep miles to go before I sleep that means मरिबा पूर्व हमको बहुत किछि करिकि जीवा को पढ़िबो dust thou art जो पोएम रे मेंशन अछि डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नेस्ट जोटा कि बाइबल रु डायरेक्टली निया जाय छै ए लाइन टाको दिस अप्लाइज टू द बॉडी ओनली नॉट द सोल ए सेंटेंस टा खाली ह्यूमन बॉडी को ही इंडिकेट करूची मनुष्यर आत्मा को इंडिकेट करू नाही काहे कि द सोल इज इमॉर्टल अकॉर्डिंग टू दिस ब्यूटीफुल पोएम फिलोसॉफिकल पोएम ए सम ऑफ लाइफ ताले लाइफ रो एम कोन द एम ऑफ लाइफ इज एक्शन एंड प्रोग्रेस जीवन रे सब बेले आमे कोन लक्ष्य रखिबा ना केमिति काली ठारो आज बेटर हे परिबो एवं आज ठारो आसंता काली बेटर हे परिबो प्रोग्रेस शुड बी द एम ऑफ लाइफ आर्ट इज लॉन्ग टाइम इज फ्लीटिंग शोज कंट्रास्ट कंट्रास्ट माने कोन विपरीत तो आर्ट इज लॉन्ग बा कला बहु समय इट इज नेवर एंडिंग इट इज एवर लास्टिंग टाइम इज फ्लीटिंग बट समय केबे काहाकू अपेक्षा करे नाही समय गडी चले
सो आर्ट केबे सरी जाए नाही एवं समय केबे रही जाए नाही सो ये कौन देखुचु आम कंट्रास्ट देखुचु दिस लाइन यूजेस एंटीथेसिस ए जो कंट्रास्टिंग आइडियाज को कौन कहा जाए एंटीथेसिस एंटीथेसिस अगेन इज ए फिगर ऑफ स्पीच ताले पिला माने बुझो एंटीथेसिस कौन गोटे लाइन रे दुईटा कंट्रास्टिंग आइडिया को रिप्रेजेंट करा जाय थिबो हार्ट्स लाइक मफल्ड ड्रम्स ए लाइन रे कौन फिगर ऑफ स्पीच यूज करा जायछि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जेते बेले दुईटा अनलाइकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आमे कंपेयर करूचे बाय यूजिंग ए कंपैरेटिव वर्ड ताको आमे कहबा सिमिली तो हार्ट्स लाइक मफल्ड ड्रम हार्ट को एटी मफल्ड ड्रम से तो कंपेयर करूछु आ कंपैरेटिव वर्ड कोन लाइक सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली लाइफ इज कंपेयर टू ए बैटलफील्ड अगेन गोटे स्टैंजा रे लाइफ को बैटलफील्ड युद्ध क्षेत्र सहित कंपेयर करा जायछि वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इज अ मेटाफर देखो पिला माने वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल ए लाइन रे मध्य गोटे कंपैरिजन अछि वर्ल्ड को गोटे फील्ड ऑफ बैटल सहित कंपेयर करिछु किंतु ए जगह रे कौन सी प्रकार कंपैरेटिव वर्ड रो यूज नाही जेमति कि लाइक और एज किछि यूज करा जाय नाही ए सेंटेंस रे हमरो डायरेक्ट कंपैरिजन अछि आ डायरेक्ट कंपैरिजन को कौन कहिबा मेटाफर कहिबा सिमिली आ मेटाफर मध्य रे पार्थक्य ही सेतिकी सिमिली रे आमे कंपैरेटिव वर्ड को यूज करिकि दुईटा ऑब्जेक्ट को तुलना करूचे मेटाफर रे कौन सी प्रकार कंपैरेटिव वर्ड्स यूज न करिकि आमे दुईटा ऑब्जेक्ट को कंपेयर करूचे बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल एडवाइजेस इंडिपेंडेंस ए सेंटेंस टा कोन प्रथमे बुझ एठी कहा जायछि कि डम कैटल डू नॉट थिंक फॉर देमसेल्व्स दे आर ड्रिवन बाय ह्यूमन बीइंग्स वेयर एवर दे आर टेकन ह्यूमन बीइंग्स जुआडे कैटल को टाणी की नियंती सियाडे गाय माने चली की जानती कैटल चली की जानती सो द पोएट वांट्स ह्यूमन बीइंग्स नॉट टू बिहेव लाइक डम ड्रिवन कैटल सो एठी कोन एडवाइस करूछंती पोएट एडवाइस करछंती इंडिपेंडेंस से कहछंती निजरो लाइफ रो कंट्रोल निज हाथ रे रखो डोंट बी लाइक ए डम ड्रिवन कैटल जे कि मनीषर कथा रे आगो को बढ़े निजस्व किछि चिंताधारा गाई रो न थाए द कैटल इमेज सजेस्ट्स पैसिव लिविंग माने कोन अन्य मानक कथा रे जीवन बंचिबा सो द पोएट सेज ट्राई टू लिव वेरी एक्टिवली पैसिव लिविंग is not the motive or the goal of human life. Be a hero in the strife माने struggle of life जो जीवन रो युद्ध अछि सेठी सब बेले केमित रहबा को पड़िबो ना लाइक अ हीरो act in the living present stresses present action सो एटी गोटे सेंटेंस रे अछि act in the living present तो पास्ट को धरि कि रखिबोनी कि फ्यूचर को मध्य फ्यूचर ऊपर मध्य अधिक आशा रखिबो नाही बिकॉज यू डोंट नो इन फ्यूचर व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ यू सो कौन इंपोर्टेंट ना पास्ट ना फ्यूचर तुम पे प्रेजेंट होची सब बेले इंपोर्टेंट सो इट स्ट्रेसेस प्रेजेंट एक्शन हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड ए सेंटेंस ता कोन ना लास्ट स्टैंजा रे एठी राइटर कहिसंती कि जत्ते बेले भी तुम किछि एक्टिविटी करूचो डोंट फॉरगेट दीज टू थिंग्स देयर इज अ ब्यूटीफुल हार्ट विद इन एंड देयर इज समबडी कॉल्ड गॉड ओवरहेड तुम भितर गोटे सुंदर हार्ट अच्छी माने काइंडनेस अच्छी जहाँ भी करुच से काइंडनेस ह्यूमन काइंडनेस सहित ही कर आईटा के भूलनी कि गॉड जहाँ भी तुम करुच सेटा को अनै बसी भगवान सब देखुंट सो इट शोज फेथ एंड कॉन्फिडेंस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम ये कौन फिगर ऑफ स्पीच यूज करा जायछि एठी यूज होइछि मेटाफर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम केमिति ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଏ ମେଟାଫର ଇଜ୍ ଅ ଫିଗର ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଇନ୍ ବିଚ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଏନଦର ୱିଥାଉଟ୍ ୟୁଜିଂ ଲାଇକ୍ ଅର୍ ଆଜ୍ ସୋ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟିଂ ମାର୍କ୍ସ ଲେଫ୍ଟ ବିହାଇଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଦ ପ୍ୟାसेज ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ ଦି ପ୍ୟାसेज ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ सो पोएट ये डायरेक्टली कंपेयर करुछंती ग्रेट ह्यूमन एक्शंस एंड अचीवमेंट्स को फुटप्रिंट्स जोटा कि सेमाने छाड़ी की जाउछंती ता सहित सो जेहेतु एठी लाइक किंबा एज यूज करा जाय नाही इट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर ग्रेट मेन इंस्पायर अदर्स थ्रू नोबल डीड्स सो ग्रेट मेन जे भी आमर पूर्वपुरुष अच्छा महापुरुष अच्छा से माने आम समस्त को इंस्पायर करती आम नेक्स्ट जनरेशन को मध्य इंस्पायर करेंगे केमिति इंस्पायर करती ना थ्रू देयर नोबल डीड्स तांकर जो ग्रेट वर्क अच्छी ग्रेट डीड्स अच्छी तांकर कर्म आमको इंस्पायर कराए सेलिंग ओवर लाइफ सोलम मेन इज ए मेटाफर फॉर लाइफ जर्नी तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस अच्छी सेलिंग ओवर लाइफ सोलम मेन एटी कौन फिगर ऑफ स्पीच यूज करा जायछि मेटाफर
कहीं जीवन को ये गोटे जल यात्रा सहित कंपेयर कर गोटे वोयाज सहित समुद्र समुद्र गोटे वोयाज सहित कंपेयर कर लाइफ जर्नी को समुद्र वोयाज सहित कंपेयर कर विदाउट एनी कंपेरेटिव वर्ड पिला माने एटा देखो ओ एपोस्ट्रोफी ई आर दिस इज ओवर OVER को एटी O apostrophe ER लिखा जाइछि एटी मध्ये गोटे फिगर ऑफ स्पीच यूज करा जाइछि दैट इज कॉल्ड पोएटिक कॉन्ट्रैक्शन पोएटिक कॉन्ट्रैक्शन माने किछि गोटे वर्ड को पोएट्री रो रिदम और राइम को मेंटेन करबा पई छोटो करि दिया जाय काटी दिया जाय सो ओवर हे गला ओर ए पोएम रो टोन कोन throughout the poem we see very optimistic and motivating tone so poem हमको positivity देउची और motivate करूची throughout all the stanzas हमें गोटे motivation पाउछे the poem follows a regular rhyme scheme ए poem रो गोटे regular rhyme scheme अछि कोन rhyme scheme let us discuss the rhyming pattern or rhyme scheme of this poem is ABAB मु गोटे स्टैंजा पढ़ी कि तुमको बुझे दूची ए बी केमती होची ए बी माने कोन फर्स्ट लाइन ता राइम करूची थर्ड लाइन सह सेकंड लाइन राइम करूची फोर्थ लाइन सह सो गोटे एग्जांपल नै जिबा देखो गोटे स्टैंजा अछि लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट ओके अर्नेस्ट माने ए एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल माने बी डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नेस्ट जोटा कि अर्नेस्ट सह राइम करूची सेटा पुनी थरे हे जिवो ए वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल राइम करूची गोल सह गोल को हमें बी मार्क करथिले तो अगेन फोर्थ सेंटेंस टा हे जिवो बी सो ए प्रकार ए बी होची यारो राइमिंग पैटर्न ए पोएम टा परसिवरेंस और हार्ड वर्क को प्रमोट करूची परसिवरेंस माने कोन डट के रहना बोलते हैं ना कि किसी काम को अधारू छाड़ा कथा नुह सेटा कंप्लीट हेबा पर्यंत लक्ष्य स्थल रे पहुँचवा पर्यंत आमको कंटिन्यूअसली एफर्ट देबाको पड़िबो दैट क्वालिटी मीन्स परसिवरेंस हार्ड वर्क मध्य करबाको पड़िबो विदाउट हार्ड वर्क वी कैन नेवर अचीव एनीथिंग इट बिलोंग्स टू द कार्पे डिएम फिलोसफी रिमेंबर स्टूडेंट्स कार्पे डिएम कौन कार्पे डिएम मीन्स सीज द डे एटा तमरो जो वार्म अप अच्छे पोएम रो सेठी मेंशन अच्छी सीज द डे माने मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर डे एई दिनटा तुमरो एई दिनर सदुपयोग करबा तुमरो रेस्पॉन्सिबिलिटी एई दिन को वेस्ट करबा कथा नुह काहे कि ना एवरी डे इज ए ब्लेसिंग सो प्रति दिन को हमको कंप्लीटली 100% यूटिलाइज करिपार अछि इन बेस्ट पॉसिबल वे नेक्स्ट द पोएम एम्फसाइजेस सेल्फ रिलायंस थ्रूआउट द पोएम राइटर कहती कि सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स माने सेल्फ डिपेंडेंस निज भितर निजे कंप्लीट हेबार सिख यू शुड नॉट रिलाई ऑन अदर्स यू शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स द मेसेज इज टू लिव एक्टिवली एंड लिव ए नोबल लेगेसी तो फाइनली आम जब सम अप करबा मेसेज कौन ये पोएम रो टू लिव एक्टिवली सब बेले एक्टिव है कि जीवन को अतिबाहित करो एंड लिव ए नोबल लेगेसी आउ तमे तम नेक्स्ट जेनेरेशन पाई मध्य गोटे लेगेसी को छाड़ी के जाओ बा तमे एमिति कर्म करके जाओ कि तम नेक्स्ट जेनेरेशन तुमको मन रखिबे एवं तमठू किछि इंस्पिरेशन ड्रॉ करिवे मूविंग टू द थर्ड पोएम टेलीविजन व्हिच इज रिटन बाय रोअल्ड डाल So Roald Dahl was born in the year 1916 and died in 1990. He was a British writer of children's literature. Say especially children's literature lekhuthile. So let us see kon one-liner achi about this poem Television. The poem criticizes excessive television watching. So television poem ro main theme kono na excessive jo television watch karanti especially children mane taku se criticize karichhanti. The tone is humorous yet sarcastic. सो ए पोएम टा कोन गोटे ह्यूमरस पोएम माने से सीरियसली कहना एक्चुअली गोटे सीरियस मैटर को हाईलाइट करूछंती किंतु इन अ sarcastic वे इन अ फनी वे इन अ ह्यूमरस वे नेवर लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट इज डायरेक्ट एडवाइस ए जो लाइन टा अछि नेवर लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट एटा सिंबॉलिक नुह एटा गोटे स्ट्रेट एटा गोटे डायरेक्ट एडवाइस टू ऑल द पेरेंट्स Television is called an idiotic thing, an idiot box in the poem. जोटा कि एबे जनरेशन रे इडियट बॉक्स कोटा पलटि जाय आम हाथ रे जो मोबाइल अच्छे बिकज इट इज
it can be used for our benefits and also it can bring a lot of problems to us, physical problems ଯେମିତି କି eye problem and postural problem, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି problem ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ by the excessive use of mobile phones in wrong way. So we need to understand, we need to know in which way the gadgets should be used. Next, children loll and lounge showing laziness. এই जो phrase टा अछि loll and lounge, आरो meaning होची पिला माने केमती तांको भितर केमती laziness थाउची, एटा तांको lazy attitude को showcase करूची. loll and lounge is alliteration. एठी figure of speech कोन यूज करा जायछि loll and lounge, sorry लॉल एंड लाउंज रे फिगर ऑफ स्पीच कौन यूज करा जायछि एलिटरेशन. एलिटरेशन माने कौन रिपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स. एलिटरेशन कौन रिपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड. एटी कौन कॉन्सोनेंट एल एल, लॉल रे एल, लाउंज रे एल. ए जो एल साउंड टा रिपीट करा जायछि एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स. दुई किंबा ततोधिक कंजिक्यूटिव बा पाखापाखि थिबा वर्ड्स रो प्रथम साउंड ता जदि सिमिलर अछि, कॉन्सोनेंट साउंड अछि, ताले ताको हम कहबा एलिटरेशन. ए डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर. ए जो सेंटेंस रे कोन फिगर ऑफ स्पीच यूज करा जायछि कोहा जायछि ए डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर. फ्लोर ऊपर 12टा गोटे डजन, वन डजन मींस 12 आईबॉल्स वर रोलिंग. सो एमिति केबे रियलिटी रे हुएनी. तो कौन करा जायछि राइटर एग्जाजरेट करूचंती, बढ़ई चढ़ी की कहउचंती. सो दिस एग्जाजरेशन इन लिटरेरी सेंस इज कॉल्ड हाइपरबोल. ए पोएम रे कहा जायछि कि टेलीविजन हिप्नोटाइजेस चिल्ड्रन, इट रॉट्स द सेंस इन द हेड. एठी कोन फिगर ऑफ स्पीच यूज करा जायछि, मेटाफर यूज करा जायछि. केमिति टेलीविजन इज कंपेयर्ड टू समथिंग दैट कॉजेस रॉटिंग हियर. कह जाए टेलीविजन गोटे एमती जिनस जोटा कि मुंड को बा ब्रेन को आम सेंसेस को धीरे धीरे खाई जाए. तो ये जो रॉटिंग नॉर्मली कहा सहित हुए, डेड बॉडी सह बा गोटे डिकेइंग मैटर सह हुए, माइंड सहित एटा केबे हुए नहीं. सो एक्सेसिव टीवी वाचिंग को ए जगह रे फिजिकल डीके ऑफ द ब्रेन सहित कंपेयर करा जायछि विदाउट यूजिंग एनी कंपैरेटिव वर्ड लाइक और एज. सो एटा होछि मेटाफर रो एग्जांपल. किल्स इमेजिनेशन डेड शोज लॉस ऑफ क्रिएटिविटी. इमेजिनेशन को मारी दे, राइट, माने क्रिएटिविटी को मारी दे, लॉस ऑफ क्रिएटिविटी. मूविंग टू द नेक्स्ट, क्लॉग्स एंड क्लटर्स अप द माइंड सजेस्ट्स मेंटल ब्लॉकेज. तो क्लॉग हे जिबा बा क्लटर हे जिबा माने किछि गोटे जिंस जाम हे जिबा. सो माइंड टा क्लॉग हे जाउची माने मेंटली माइंड टा ब्लॉक हे जाउची. ब्रेन बिकम्स एज सॉफ्ट एज चीज. सो रिमेंबर एज सॉफ्ट एज अच्छी माने सेठी सिमिली रो यूज थाई पारे. सो एठी जदि हमें क्लियरली देखिबा ताहले ब्रेन केमिति हे जाय चीज टाइप हे जाय. तो ब्रेन को चीज सो कंपेयर करे जायछि आ कंपैरेटिव वर्ड एज मध्ये यूज करे जायछि. सो एटा होछि सिमिली रो एग्जांपल. ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज शोज मेंटल डलनेस. देखो कहा गला कि ही ओनली सीज, तार दुई आखिरे से देखि पारे, पिलाटा देखि पारे किंतु ता भितरे थिंकिंग एबिलिटीटा डल हे जाए बट टोटली जीरो हे जाए. तो यार मीनिंग मेंटली से डल हे जाए. पेरेंट्स यूज टीवी एज अ बेबी सिटर. तो बेबी सिटर रो काम गोटे बेबी सिटर माने जे कि चिल्ड्रन मानकर जत्न निए, हु टेक्स केयर, हु लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन इन द एब्सेंस ऑफ द पेरेंट्स. सो एटी टीवी केमती बेबी सिटर होची ना, पेरेंट्स यूजुअली टीवी ऑन करिकी छुआ को छाड़ी की चली जाती. से माने भावंती कि टीवी देखुचे पिलाटा माने पिलाटा कंप्लीटली एंगेज हेकी अछि, जस्ट लाइक दे आर विथ अ बेबी सिटर. टीवी रिड्यूसेस फिजिकल एक्टिविटी, देयर इज नो डाउट इन इट, बिकॉज टीवी ऑन हैला माने पिला माने समस्ते स्क्रीन को लागी की रहउछंती. जेमिते एबे वर्तमान जुग रे आम हाथ रे मोबाइल, आ मोबाइल को जतले आमे ऑन करूचे, मोबाइल स्क्रीन ता हम सामने रे अछि, तो दुनिया पूरा आम पय अंधार हे जाउची, आमे आ किछि मध्ये जानि पारू ना हो. सो इट रिड्यूसेस फिजिकल एक्टिविटी. आमे बाहर को चाली की जिबा पे पसंद करूनु, आमे कहा सह अधिक कथबार्ता करबा पे पसंद करूनु. इवन शॉपिंग करी गोटे मजादार जिनस मध्ये आमे ऑनलाइन सब सारी दउछु. सो फिजिकल एक्टिविटीज धीरे धीरे कमी जाउछि. द पोएट सजेस्ट्स रिप्लेसिंग टीवी विथ बुक्स. तो पोएट सजेस्ट करंती कि टीवी शुड बी रिप्लेस्ड बाय बुक्स और ए मिनी लाइब्रेरी इन एवरी हाउस.
कहीं रीडिंग डेवलप्स इमेजिनेशन जिते तुम अधिक पढ़ से तुम ब्रेन डेवलपमेंट हम आउ से तुम भितर इमेजिनेशन स्किल बिल्ड कर द पोएम यूजेस एक्साजरेशन फॉर कॉमिक इफेक्ट जिते जगह मु ऑलरेडी तुमको एक्साजरेशन बा हाइपरबोल रो एग्जांपल देइछि कौन सेंटेंसटा थिला ना डजन आईबॉल्स फ्लोर उपरे रोल करुले से एक्साजरेशन यूज होती कौन पाई केबे तो आईबॉल्स आखिर जो आमर कौन आईबॉल जो अच्छी आखि जाक अच्छी सेटा केबे फ्लोर पर रोल करे नाही किंतु एठी राइटर लिखिछंती सेटा कौन पे लिखिछंती कॉमिक इफेक्ट पे लिखिछंती गोटे फनी गोटे लाफ्टर क्रिएटिंग एलिमेंट हिसाब रे ताको यूज करा जायछि कैपिटल लेटर्स एम्फसाइज वार्निंग जो वर्ड को मध्य कैपिटल लेटर लिखा जाउछि एटा एम्फसाइज कौन करा जाउछि ना वार्निंग बारंबार रोल्ड डाल वार्न करूछंती पेरेंट्स को कि सतर्क हे जाओ टीवी इज नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड टीवी एडिक्शन लीड्स टू डलनेस एंड ब्लाइंडनेस सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्क्रीन निश्चय भाव में आखि उपर इंपैक्ट पकेबो बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस रहिबो तो इट मे कॉज ब्लाइंडनेस और इट मे कॉज डलनेस इन योर ब्रेन एटा क्लियरली एम्फसाइज करा जायछि द पोएट मॉक्स मॉडर्न पेरेंटिंग तो आधुनिक जुगर जो पेरेंटिंग अच्छी माँ बापा जो चाइल्ड रो केयर नेबार बा चाइल्ड को जो प्रकार से माने पालती से जो मॉडर्न पेरेंटिंग रे बहुत प्रकार भूल भटका बाहर करचंती सो ही हैज मॉक्ड द मॉडर्न पेरेंटिंग स्टाइल इट हाइलाइट्स द डेंजर ऑफ स्क्रीन एडिक्शन सो ये पोएम रे हमें स्क्रीन एडिक्शन रो डेंजर को देखुचे इट कैन बी टेकन एज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम एज वेल द राइम स्कीम इज प्लेफुल एंड रिदमिक ए पोएम रे मध्ये गोटे पर्टिकुलर राइम स्कीम अच्छी सो इट इज योर ड्यूटी इट इज योर टास्क find out the rhyme scheme and comment down in the comment section the poem is written in conversational style so पोएम जदि पढ़ी थी तो मैंने निश्चय भाव में जानी थी ऑब्जर्व करी थी कि एटा गोटे कन्वर्सेशनल स्टाइल रे लिखा जाइछि एज इफ द राइटर द पोएट इज डायरेक्टली टॉकिंग टू द पेरेंट्स तो कन्वर्सेशन माने कथावार्ता हबा से टोन रे से स्टाइल रे ही ए पोएम को लिखा जाइछि इट रिफ्लेक्ट्स कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस मेंटल ग्रोथ सो ये पोएम रे गोटे कंसर्न बा गोटे चिंतार विषय को देखा जाइछि कोन पर ना पिला मानकर मेंटल ग्रोथ पे दिस पोएम सेज इमेजिनेशन इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिविटी पाई चिंता करिवार शक्ति बहुत एसेंशियल टेलीविजन डिस्ट्रॉयज इंडिपेंडेंट थिंकिंग टेलीविजन आम भितर जो इंडिपेंडेंटली भाविबार क्षमता को नष्ट कर दिए द पोएम डायरेक्टली प्रेजेस रीडिंग हैबिट्स ए पोएम रे एटा मेंशन करा जायछि कि पढ़िबा निहाती दरकार द मेसेज इज दैट बुक्स आर बेटर देन टेलीविजन तो फाइनल मेसेज जदि आमे डिस्कस करिबा ताहले ए पोएम कहे कि बुक्स आर बेटर देन टेलीविजन देखिबा स्क्रीन देखिबा ठारू फार बेटर बुक्स पढ़ी कि निजे ज्ञान संग्रह करिबा Moving to the fourth poem, Money Madness, which is written by D.H. Lawrence. So, D.H. Lawrence was born in 1885 and died in 1930. He was an English novelist and poet. So, पिला माने author विषय जहाँ एमती details दिया जाउची सेरा मने रखो 2 to 3 marks रो question रे मध्य important एटा रहिबा और long question जदि पढुची सेठी मध्य जदि लेखुछ ताले definitely it will create a positive impact on the checker. कि पिलाटा किछि जानिछि ए फीलिंगटा आसेबो सो लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस पोएम मनी मैडनेस द पोएम क्रिटिसाइजेस सोसाइटीज ऑब्सेशन विथ मनी तो टाइटल रे एटा क्लियर अछि मनी मैडनेस कहार मैडनेस सोसाइटी रो मैडनेस अबाउट मनी इज आवर मैडनेस इज अ मेटाफर सो ए जो सेंटेंस टा अछि मनी इज आवर मैडनेस एठी मध्ये मेटाफर अछि केमिति मेटाफर अछि लेट अस डिस्कस Here money is compared to madness. Madness माने कौन? Obsession, loss of control or unhealthy fixation गोटे mind रो गोटे fixation. So this sentence does not mean money is literally madness, but it means people are obsessed with money and behave irrationally because of money. So simply जदि हमें कहिबा ताले money controls people's thoughts and actions. People chase money blindly and this obsession is compared to madness. So indirectly आमे जदि देखिबा एटी मेटाफर यूज करा जाइछि. Next, society is collectively insane about health. सोसाइटी सब बेले बा दुनिया सब बेले इनसेन बा मैड हो जाउची कहा पछरे वेल्थ पछरे मनी पछरे पीपल ट्रेम्बल व्हाइल गिविंग मनी लोक टंका देबा पई सब बेले थरी जानती से माने केबे मनुष्य केबे चाहे नाही जे निज हाथ रे जेतिकी से
वेल्थ रखी सेटा अन्य काहाकू देइदब देबा पई आमे जेनरस ना हूँ. दिस इज वेरी रॉन्ग. We should give at least something of what we possess. Money creates fear and insecurity. ए मनी जोगु मनुष्य जीवन रे fear आसे डर उपजी थाए एवं insecurity. किछि गोटे भूल करिबार गोटे insecurity या फिर किछि ट्रैप हबार insecurity. ए insecurity भीतर ही मनुष्य रही जाए because we are mad behind something. सोसाइटी जजेस ह्यूमन वर्थ बाय मनी. जहाँ पाखे जी टंका अच्छी ताहा अनुसार सोसाइटी लोक को जज करे. जदि तुम पाखे अधिक टंका अच्छी ताले यू विल बी कंसिडर्ड पावरफुल और इम्पोर्टेंट और वीआईपी. जदि तुम पाखे टंका नहीं ताले यू विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक ए पर्सन विथ जीरो इम्पोर्टेंस. हाउ मच इज ही वर्थ रिफ्लेक्ट्स मटेरियलिज्म. ए जो लाइनटा अच्छी हाउ मच इज ही वर्थ माने ताहार मूल्य केते से पर्सन रो मूल्य केते एटा कौन रिफ्लेक्ट करुची मटेरियलिज्म. गोटे मनीष को मध्य हमें मटेरियलिस्टिकली जज करुचे. विदाउट मनी डिग्निटी इज डिनाइड. टंका नथिले डिग्निटी नाही. डिग्निटी तुमको केबे मध्य मिलिबो नाही जदि तुम पाखरे मनी नाही. लेट हिम ईट डर्ट शोज हार्श सोशल क्रुएल्टी. जदि टंका नाही ताहले कौन कहती कि ता पाखरे टंका नहीं. सो लेट हिम ईट डर्ट. से डर्ट खाइले मध्य कहार किछि अधिक डिफरेंस किछि फरक पड़िबो किछि जीवन रे फरक पड़िबो नहीं. बिकॉज दैट पर्सन इज पुअर ही शुड ईट डर्ट. लेट हिम ईट डर्ट. तो एठी कौन शो करा जाउची रिप्रेजेंट करा जाउची हार्श सोशल क्रुएल्टी इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस लाइन लेट हिम ईट डर्ट. फियर ऑफ पॉवर्टी लीड्स टू इनजस्टिस. Fear of poverty leads to injustice. माने कौन? It means when people are afraid of becoming poor, they may act unfairly or wrongly. Fear of losing money or becoming poor makes people greedy. They may cheat, they may exploit, they may harm others. समस्तଙ୍କ ପାଇଁ पैसा होची important. जदि पोर हे जिबार डर आसे ताहले तमे जस्टिस कौन इनजस्टिस कौन तार बाछ विचार करि परिबो नाही. मनी क्रिएट्स इनइक्वालिटी एमंग पीपल. डेफिनेटली जहाँ पाखे अधिक मनी अच्छी से निज पे गोटे अलग स्टेटस मेंटेन करे. और जहाँ पाखे टंका नहीं पुअर कैटेगरी को बिलोंग करे तार गोटे स्टेटस अलग थाए. तो सेठी कौन है इनइक्वालिटी. अपर स्टेटस लोअर स्टेटस कैटेगरी हो जाउची सेठी. तो इनइक्वालिटी बढ़ुची एमंग पीपल. इनइक्वालिटी आसी जाउची बा असमानता. द टोन इज क्रिटिकल एंड सीरियस. मनी मैडनेस पोएम रो टोन कौन क्रिटिकली आमे मनी मैडनेस को एनालाइज करूचे. एटा बहुत सीरियस गोटे सीरियस मैटर को सीरियस वे रे डिस्कस करा जायछि. इट एक्सपोजेस सोशल इनजस्टिस. मनी मैडनेस पोएम टा सोशल इनजस्टिस सोशल बा सोसाइटी रो क्रुएल्टी को एक्सपोज करूछि. वी ग्रोवेल बिफोर इट सजेस्ट ह्यूमिलिएशन. ए जो लाइन टा अछि वी ग्रोवेल बिफोर इट एटी ह्यूमिलिएशन बा निंदा को रिप्रेजेंट करा जायछि. मनी हैज क्रूअल पावर ओवर ह्यूमैनिटी. दिस ऑल्सो इज वेरी ऑब्वियस कि मनी रो गोटे क्रूअल पावर अच्छी. केमिति ना टंका पाई लोक जेकोसी काम मध्य करबा को पछघुंचा दियंती नाही. दिस इज वेरी क्रूअल. द हंगर फॉर मनी the hunger for materialistic possession is very cruel. तापाई मनुष्य बहुत हिंस्र पालटी जाई पारे. ब्रेड शेल्टर एंड फायर शुड बी फ्री. सो ए पोएम रे कोन कहा जायछि कि मनुष्य पाई ब्रेड बा फूड शेल्टर बा होम फायर बा अगेन इट सिंबलाइजेस फूड और आम एमती कहि परिबा कि कंफर्टिंग जिंस. फायर माने कोन ठंडारू बंचिबा पे जो फायर आम यूज करूँ सेटा कंफर्ट लाइफ रो कंफर्ट ये सब जिनस फ्री रहिबा दरकार. देखो ये फायरटा केमिति यूज करा जाछि. दिस इज नॉट रिटन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. बाहर कंट्री जोठी अधिक बरफ पड़े हाँ तुषारपात हुए सेठी कौन फायर इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर देम. विदाउट फायर दे कैन नॉट सर्वाइव. सो आम पाई ब्रेड जति इंपोर्टेंट शेल्टर जमिति इंपोर्टेंट से कंट्री लोकों पाई यू नो फायर से इंपोर्टेंट. सो ए तीनटा जिनस लोकों पे फ्री हेबा दरकार. The poet pleads for social equality.
सो ये राइटर कौन कहते ही प्लीड्स फॉर और ही प्रेज फॉर सोशल इक्वालिटी जो सोशल इनइक्वालिटी मनी मैडनेस जो सोसाइटी रे बढ़ी बढ़ी जाऊँगी निश्चय भाव में कमिवा कथा आ सोशल इक्वालिटी उपरे लोक गुरुत्व देवा कथा द पोएम कंडेम्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सो कंडेम माने निंदा करबा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बा मनीष मनीष भितर जो इकोनॉमी को नहीं बा मटेरियलिस्टिक पोजेशन को नहीं कि टंकार पोजेशन को नहीं कि जो एक्सप्लॉयटेशन होउची जणे अन्य जनक ऊपर अत्याचार कर चली ताहाकू निंदा करिसंती पोएट रोल्ड डॉल फियर कैन टर्न इनटू डेल्यूजन इट मीन्स व्हेन फियर बिकम्स एक्सेसिव it distorts our thinking and makes us believe things that are not real or rational so डर जदि आम भितर अधिक हो जाए ताहले आम थिंकिंग को यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिए जो द्वारा कि आम जोटा रियल नहीं ताकू मध्य विश्वास करिबारे लागू बा डेल्यूजनल जोटा रियलिटी रे नहीं ताकू आम विश्वास करूछु जोटा कि डेल्यूजन हो जाए आमर मनी ड्रिवेन सोसाइटी लूजेस ह्यूमैनिटी जो सोसाइटी रे अधिक इंपोर्टेंस मनी को दिया जाउची ह्यूमैनिटी को दिया जाउ नाही सेठी ह्यूमैनिटी रो इंपोर्टेंस कंप्लीटली कमी जाए 0% हो जाए इट कंप्लीटली लूजेस द ह्यूमैनिटी द पोएम रिफ्लेक्ट्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंजाइटी कौन लेट अस अंडरस्टैंड इट मीन्स फियर स्ट्रेस इनसिक्योरिटी people feel because of industrialization and modern economic system fear of losing jobs due to machines fear of poverty fear of unemployment fear of competition pressure to earn pressure to produce more from self and survive in an industrial society एटा होची इंडस्ट्रियल एंजाइटी सो ए पोएम रे आमे इंडस्ट्रियल एंजाइटी विषय रे ही राइटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाइलाइट करिसंती इट इज रिटन इन फ्री वर्स माने कोन देयर इज नो राइमिंग पैटर्न एटा फ्री सेंटेंस फ्री वर्ड्स यूज रे बना जाइछि द स्ट्रक्चर इज कन्वर्सेशनल जेमिति ही टेलीविजन पोएम रो गोटे कन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग आमे देखुचे सेमिति ही मनी मैडनेस मध्य कन्वर्सेशनल स्टाइल रे ही लिखा जाइछि द पोएट कॉल्स फॉर रीगेनिंग सैनिटी मीन्स द पोएट अर्जेस हियर टू द पीपल टू रिकवर देयर लॉस्ट बैलेंस ऑफ माइंड सी ड्यू टू ग्रीड फियर मनी माइंडेडनेस and industrial pressure people have become mentally disturbed people are acting obsessively and irrationally so the poet asks them to pause to reflect to think and to return to calm moral and sensitive thinking money may lead to violence this is again a fact that is reflected through the lines of this poem money kuadu kamu nei ki jai pare violence aduku cruelty aduku ह्यूमैनिटी इज सुपेरियर टू वेल्थ डेफिनेटली वेल्थ ठारू बहुत इंपोर्टेंट बहुत ही सुपेरियर प्लेस रे आमे काहाकू रखिबा ह्यूमैनिटी को रखिबा बा मनुष्यर जतिकी भल गुण अछि सेटा सब बेले मटेरियलिस्टिक पोजीशन ठारू ऊर्ध्व रे ही रहिबो द पोएम अटैक्स कैपिटलिस्ट वैल्यूज कोन फोकस ऑन अर्निंग मोर मनी ए बिलीव इन कंपटीशन एंड प्रॉफिट सब बेले कंपटीशन रहिबो प्रॉफिट आ लॉस रही कैलकुलेशन गोटे माइंड रे चली थी सेटा होची कैपिटलिस्ट वैल्यूज सो ये पोएम कहार अगेंस्ट रे अछि एई प्रकार जति कि मटेरियलिस्टिक थिंकिंग अछि ना तारो अगेंस्ट अछि इट एम्फसाइजेस मोरल ओवर मटेरियल वैल्यूज सो पोएम रे कहा ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जायछि मोरल वैल्यूज ऊपर मनुष्यर जो ह्यूमैनिटी अछि मोरल वैल्यूज अछि सैनिटी अछि एटा सब जिंस को मटेरियलिस्टिक वैल्यूज रु अधिक ऊपर सुपेरियर प्लेस करा जिबा कथा The message is to restore human sanity before money destroys society. So finally a poem ro message kono na restore human sanity. मनीषर जो मनीषत्व अच्छी मनीषत्व बा मनीषपणिया अच्छी ताको रिस्टोर करा जिबा कथा काहे कि ना बिकॉज ऑफ द मनी मैडनेस वी हैव लॉस्ट आवर ह्यूमैनिटी वी हैव लॉस्ट आवर सैनिटी आमर मेंटल बैलेंस टा बिगिड़ी जाइछि काहे कि बिकॉज वी एक्सेसिवली गो आफ्टर मनी तो ताको पुणी थे फेरी पाइबा पड़ो आमर सैनिटी जोटा कि आम डिस्ट्रॉय कर सारी ताको पुणी थे रिस्टोर रिवाइव करने पड़ो बिफोर मनी डिस्ट्रॉयज ऑल ऑफ अस एंड बिफोर मनी डिस्ट्रॉयज द होल ह्यूमन सोसाइटी दिस इज इट यहाँ थिला चारिटा पोएम रो वन लाइनर्स एमसीक्यू मध्य यहाँ हेल्प करिवो
तापरे 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन पाई मध्य ए वन लाइनर हेल्प करिवो देन अगेन लॉन्ग क्वेश्चन पाई मध्य एटा हेल्प करिवो सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग अनदर वीडियो डीलिंग विथ द वन लाइनर्स ऑफ the prose and the invitation to chapters as well. So until then, have a happy learning time. अधिक निज को प्रेशराइज करो नहीं. So hit like if you liked the video and subscribe the channel for more updates. Thank you so much.